What is constructor? How you can define? Two functions which is same name but parameter is different. It's a block of code. Yes, right. What is constructor? It is a block of code. Okay, that is having the same name as class name, same name as class name. What are the rules of the constructor? What are the rules of the constructor? And it Constructor automatically called when object of the class is created. type in chat box. Type in chat box. Online student, offline students also type in chat box. Constructor must have the same name as class name. Correct. Okay. Constructor name क्या होना चाहिए? Same as class name. And when constructor is called, how constructor is called? When an object is Yes, right. When an instance of the class is created. When an instance of the class is created by using the new keyword. New keyword use करते हैं ना उस sentence में हम लोग, right? When an instance of the class is created, constructor is called. How many types of constructor? There are two types of constructor: default constructor and parameterized constructor. Default constructor, or you can say no argument constructor. Default constructor or no argument constructor. Okay. See, main point here था, by default, suppose let us consider if you are not declaring any constructor in your class, automatically compiler creates a default constructor. Okay, if you are not creating any constructor in a class, compiler automatically creates default constructor. Okay. See now what is constructor overloading? क्या देख रहे हैं हम लोग को? जैसे method overloading we have seen, right? What is method overloading? Write the definition in the chat box. What is method overloading? What is method overloading? How you can define? What is method overloading? Which have the same class name but the different same class name. Class word मत use करो, method name. Method overloading है. Method overloading है. In method overloading, methods must have the same name. Methods must have the same name, but it can be in different in parameters, different in number of parameters, different in number of parameters, or different in types also. See, suppose for example, in a class I have taken three methods. Three methods के name है SYT, SYT and SYT. तो ये कौन सा concept है? Method overloading का. So in three methods of SYT तुम क्या कर सकते हो? In first method you can pass two parameters. Second में 3, 1. There can be changes in the number of parameters or data type also. Data type also means in first method you're taking integer and float. In second method you can take float and double. Okay. But condition क्या constructor method overloading का methods same. Methods name same होना चाहिए, but there can be changes in the number of parameters or the types. Types कौन सा? Data types. Okay. Now see what is constructor overloading. Constructor overloading is a technique of having more than one constructor. If you are creating more than one constructor with different parameters, को हम लोग बोलेंगे constructor overloading. What is constructor overloading? Note down this.
It is a technique of having more than one constructor with different parameter. Okay. Technique. Constructor overloading. It is a technique of having more than one constructor with different parameter. More than one constructor with different parameter. To see constructor overloading में more than one constructor, right? और उनके पैरामीटर कैसे है? डिफरेंट है. तो पैरामीटर्स डिफरेंट है, इसका मीनिंग ये हुआ, ये पॉइंट देखो, दे आर डिफरेंशिएटेड बाय द कंपाइलर बाय द नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन द लिस्ट एंड देयर टाइप्स. कंपाइलर्स कंफ्यूज नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? हाउ इट कैन बी डिफरेंशिएटेड, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग? दो कंस्ट्रक्टर है सपोज, more than one constructor ना, let's take two constructor, right? two constructor है तो how we can differentiate, दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कैसे करेंगे? by the number of parameters in the list. कितने पैरामीटर्स है? सपोज फर्स्ट कंस्ट्रक्टर में 2 पैरामीटर्स है, सेकंड कंस्ट्रक्टर में 3 पैरामीटर्स है, so we can differentiate it by the number of parameters and their types. कौन से टाइप्स है? इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, कौन सा टाइप है? ओके. डेफिनेशन, मेन डेफिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग यही है. इट्स अ टेक्निक ऑफ हैविंग मोर देन वन कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट parameter list, right? And how it can be differentiated? Differentiate कैसे करेंगे? By the number of parameters in the list and their types. Okay. अब ये प्रोग्राम को तो go through करो जरा. Go through this program step by step. कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का प्रोग्राम है ये. कमेंट में लिखा है, देखो सिंगल लाइन कमेंट में, Java program to overload constructors. टू मेथड्स लिया है. सबसे पहले ये देखो, और दोनों मेथड्स के नेम सेम है. मेथड्स में नहीं बोलो, अभी कंस्ट्रक्टर बोलेंगे. दोनों के नेम सेम है, राइट? स्टूडेंट 5 एंड स्टूडेंट 5. तो क्या हो गया? ये नेम सेम है तो कंस्ट्रक्टर हो गया, राइट? एंड मोर देन वन है, मोर देन वन वी आर क्रिएटिंग कंस्ट्रक्टर, तो क्या हो गया? वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो गया. फर्स्ट वाले में देखो, फर्स्ट कंस्ट्रक्टर में देयर आर 2 पैरामीटर्स, राइट? दो है कि नहीं? आई एंड एन. सेकंड में कितने हैं? 3 पैरामीटर्स है सेकंड में. अभी नीचे का गो थ्रू करो, मेन मेथड से गो थ्रू करो. मेन मेथड में क्या किया हुआ है? कंस्ट्रक्टर को कॉल किया हुआ है, राइट? कैसे कॉल किया है? हाउ कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड? मेन लाइन पे फोकस करो. हाउ कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, वो मेन मेथड की बात की जस्ट लाइन जो है स्टूडेंट 5 s1, ठीक है? बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द, किसको ऑब्जेक्ट बनाना है हम लोग यहाँ पे? s1 और s2 किसको ऑब्जेक्ट है? क्लास का ऑब्जेक्ट है. जो स्टूडेंट 5 जो क्लास है उसी का ऑब्जेक्ट है ना, क्लास का ऑब्जेक्ट है. कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट नहीं बोलना है. किसका ऑब्जेक्ट है? ये क्लास का ऑब्जेक्ट है. तो हाउ कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड? बाय क्रिएटिंग द इंस्टेंस ऑफ द क्लास, बाय क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास. हाउ इंस्टेंस इज क्रिएटेड? ये सिंटैक्स है. क्लास का नाम लिखो, ऑब्जेक्ट बना दो, इक्वल लिखना है, देन न्यू क्या लिखना है? क्या लिखना है? न्यू. देन अगेन राइट द क्लास नेम. अब ब्रैकेट में क्या पास हो रहा है? फर्स्ट दो हम लोग ने लिए ना कंस्ट्रक्टर, पहले में इंटीजर आई और स्ट्रिंग एन है, तो एक इंटीजर वैल्यू और एक स्ट्रिंग वैल्यू. सेकंड के लिए हम लोग ने एक इंटीजर वैल्यू, वन स्ट्रिंग वैल्यू एंड वन इंटीजर वैल्यू. सेकंड कंस्ट्रक्टर के लिए s2 में. समझ में आ रहा है? देन हम लोग उसको कैसे कॉल कर रहे हैं? उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या हो रहा है? ये लाइन मुझे बता, s1 डॉट डिस्प्ले का मतलब क्या है? s2 डॉट डिस्प्ले व्हाट इट इज? चैट बॉक्स में लिखो इफ यू नो दिस आंसर. राइट इन द चैट बॉक्स.
आई चला गया पब्लिक। पब्लिक ऑब्जेक्ट है, हाँ S1 ऑब्जेक्ट है, राइट। S1 का ऑब्जेक्ट है क्लास का। S2 इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। ये जो है ना ये आपका देखो दो See, let's understand this. ये लाइन ये बता रहा है कि हाउ कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, कैसे कॉल हो रहा है, बाय क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ओके, अभी ये वाला लाइन पे आ जाओ। void एक मेथड में ले रही हूँ, डिस्प्ले मेथड। मेथड का नेम क्या है, डिस्प्ले मेथड। ओके, void मीन्स इसको मैं रिटर्न करवा रही हूँ, यहाँ पे यूज करें मीन्स रिटर्न करवा रही हूँ। ओके, तो void डिस्प्ले मेथड में यूज टू डिस्प्ले दी वैल्यूज। डिस्प्ले मेथड यूज टू डिस्प्ले दी वैल्यूज। ओके, तो क्या डिस्प्ले करवाना है मुझे, आईडी नेम एंड एज। क्या डिस्प्ले करवाना है, आईडी नेम और एज। ठीक है, आईडी नेम एंड एज जो यहाँ पे डिफाइन है, आईडी नेम एंड एज। तो डिस्प्ले यहाँ पे हो रहा है ये मेथड के अंदर, समझो। हाँ, बट डिस्प्ले मेथड को आई एम कॉलिंग इन दिस मेन मेथड। कहाँ पे कॉल कर रही हूँ मैं इसको, मेन मेथड में। तो कैसे मेथड कॉल होता है, हाउ वी कैन कॉल दी मेथड, मेथड का जो ब्लॉक है, हाउ वी कैन कॉल मेथड का जो ये ब्लॉक है ना, आईडी नेम एज, हाउ वी कैन कॉल बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास डॉट मेथड नेम। ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास यही ना S1 डॉट मेथड नेम ये डिस्प्ले, दूसरे का क्या S2 डॉट डिस्प्ले। अभी जो वैल्यूज आई वांट टू डिस्प्ले करवाना वैल्यूज, यहाँ पे कोई प्रिंटिंग स्टेटमेंट है क्या, समझो बात को, यहाँ कोई प्रिंटिंग स्टेटमेंट है, ओनली हैव पास दी वैल्यू। सिर्फ वैल्यू पास किया ना तो प्रिंट हो जाएगा क्या, नहीं, यहाँ तक की बात करो, यहाँ तक डिस्प्ले हो जाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, राइट। हो पाएगा डिस्प्ले, नहीं हो पाएगा डिस्प्ले। ठीक है, तो डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने एक मेथड बना दी, डिस्प्ले मेथड। अभी डिस्प्ले मेथड बनाने के बाद आईडी नेम एज सब कुछ है इसके ब्लॉक के अंदर। क्या क्या है, ये वेरिएबल्स है, बिकॉज आईडी नेम और एज ये 3 जो है वो लोग क्या कर रहे हैं, इंटीजर वैल्यू नेम और एज तीनों होल्ड कर रहे हैं। यहाँ से स्टार्टिंग से देखिए फिर से, क्लास नेम 3 हम लोग ने वेरिएबल्स डिफाइनिंग आईडी नेम एंड एज। आईडी किस में होगा, इंटीजर्स में होगा, नेम स्ट्रिंग में होगा, एज किसमें होगा, इंटीजर में होगा। ये सिर्फ डिफाइन किए बिकॉज इसका प्रोग्राम में वी आर गोइंग टू यूज दिस वेरिएबल्स, सो लेट्स फर्स्ट डिफाइन इट। ओके, देन व्हाट वी कैन डू, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का प्रोग्राम है तो क्रिएट 2 कंस्ट्रक्टर। नो कितने कंस्ट्रक्टर, मोर देन 1 कंस्ट्रक्टर, मोर देन 1। तो हम लोग कितने कर रहे हैं, 2 वी आर क्रिएटिंग। ओके, 2 विद डिफरेंट पैरामीटर्स। यहाँ पे कितने पैरामीटर्स है, 2। यहाँ पे कितने पैरामीटर्स है, 3 है। ये वाले में कितने हैं पैरामीटर्स, यहाँ से देखने का कितने पैरामीटर्स है, 3 है, आई एन और ए। यहाँ पे कितने पैरामीटर्स है, 2 पैरामीटर्स, आई एंड एन। अभी उसके बाद हम, ये कंस्ट्रक्टर का ब्लॉक है कि नहीं, किसका ब्लॉक है, फर्स्ट कंस्ट्रक्टर का ब्लॉक है ये कौन सा कंस्ट्रक्टर का ब्लॉक है, सेकंड कंस्ट्रक्टर का ब्लॉक है। फर्स्ट कंस्ट्रक्टर के ब्लॉक में हम लोग क्या कर रहे हैं, सी। अभी यहाँ ध्यान से, यहाँ पे आई और एन हम लोग ने इनिशियलाइज की, 2 वेरिएबल अलग अलग, आई और एन। तो ये आईडी, आई किसमें है, इंटीजर में है, तो मैंने क्या दिया यहाँ से, आईडी। स्ट्रिंग एन में है तो यहाँ पे क्या आएगा, नेम। यहाँ पे स्ट्रिंग कौन सा है, नेम है। तो ये दोनों को क्या कर रही हूँ मैं, जो कंस्ट्रक्ट का जो पैरामीटर्स है और ये जो क्लास का जो वैल्यूज है उसको मैं क्या करवा रही, रेफरेंसिंग करवा रही। रेफरेंसिंग मीन्स नाउ आई और एन में जो वैल्यूज तुम यहाँ पास करने वाले हो, यहाँ पे यू हैव पास ना आई एंड एन वैल्यू, ये आई और एन का वैल्यू यू हैव पास किया ना, यस और नो, यही तो पास किए ना। तो आई एन की वैल्यूज कहाँ पे तुम स्टोर करवा रहे हो, ये क्लास के ऑब्जेक्ट में। कहाँ पे, ये तो कंस्ट्रक्टर का है कि नहीं, ये वाला आई एन, यस और नो, खाली इतना बताओ, ये कंस्ट्रक्टर का है। तो कंस्ट्रक्टर का जो है तुम कहाँ पे स्टोर करवा रहे हो,
IN क्लास वाले में, किसमें? क्लास वाले में, मतलब ये क्लास वाला है कि नहीं? समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? क्लास वाले में कंस्ट्रक्टर का जो वैल्यू है वो स्टोर करवा रहे हैं। कंस्ट्रक्टर का वैल्यू कहाँ पास कर रहे हैं हम लोग? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, राइट ना? यहाँ पे पास हो रहा है ये 111 और करंट, यहाँ पे ये IN और A का वैल्यू यह पास ही है, राइट? यहाँ पे और सेम थिंग यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, ID, नेम और एज, मीन्स ये 3 जो कंस्ट्रक्टर के जो पैरामीटर्स है क्लास वाले में हम लोग स्टोर करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं ऐसा? बिकॉज कंस्ट्रक्टर क्या है? इट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड सेम एज कौन सा? मेथड ओनली ना। कंस्ट्रक्टर का जो क्लास है और जो क्लास का जो ब्लॉक, वो दोनों सेम होता है। कंस्ट्रक्टर इज ए कॉपी ऑफ क्लास ओनली, कॉपी ऑफ क्लास ओनली, ठीक है, इसलिए करवा रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट अभी देखो क्या है, अगर डायरेक्टली अगर तुम ये लाइन हटा, इतना समझा होगा सबको, इसमें किसी को डाउट है क्या? अभी इतना क्लियर होगा आई थिंक, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ से अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेन मेथड, ये भी क्लियर होगा। वी आर कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर, वैल्यू तो पास करना ही पड़ेगा, ठीक है, बाय यूजिंग द न्यू कीवर्ड, एंड यू हैव टू पास द वैल्यूज आल्सो, लाइक इंटीजर और स्ट्रिंग, दो वैल्यूज, यहाँ पे इंटीजर है, स्ट्रिंग और इंटीजर, 3 वैल्यू, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना इतना इनफ नहीं है, तुमको वैल्यू डिस्प्ले भी तो करवाना है। क्या करवाना है? वैल्यू डिस्प्ले भी करवाना है, ओके। So let's create one more method to display the values, right? Let's create one more method ना to display the values. तो वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए आई एम यूजिंग डिस्प्ले मेथड। कौन सा मेथड? डिस्प्ले मेथड। आइए कौन सा ब्लॉक है? डिस्प्ले मेथड का ब्लॉक है ना। इसमें हम लोग क्या प्रिंट करवा रहे हैं? system डॉट आउट डॉट println ID, नेम और एज। ये समझो कैसे लिखा है, ID, नेम और एज ऑलरेडी डिफाइंड है ना यहाँ पे। ID, नेम, एज में ही सब कुछ वैल्यू स्टोर है कंस्ट्रक्टर में, क्योंकि हम लोगों ने डिफरेंसिंग करवाया ना यहाँ पे, करवाई कि नहीं? ठीक है, तो ये मेन है मेरे, ये क्या है? मेन वेरिएबल से, समझा? तो ID फर्स्ट में मैंने हमेशा बोली, जब वेरिएबल एक्सेस करोगे तो फर्स्ट प्लस p लगाओगे, समझा? ये स्पेस के लिए प्लस और डबल कोट्स यूज करना है, तो मैं क्या कर रही हूँ? प्लस का साइन। नेम यूज करना है मुझे, ये नेम, तो क्या साइन है? प्लस का साइन। देन वापस डबल कोट्स के लिए प्लस का साइन। एज वेरिएबल ये वाला यूज करना है, तो प्लस का साइन। तो टू एक्सेस द वेरिएबल्स वी आर यूजिंग द प्लस साइन, ठीक है। अभी डिस्प्ले मेथड को मैं क्या कर रही? ऑब्जेक्ट, अभी ये ऑब्जेक्ट को मुझे डिस्प्ले करवाना है, राइट? ये ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करवाना है ना, तो कैसे करेंगे? S1 डॉट डिस्प्ले मेथड, S1 डॉट डिस्प्ले मेथड, S2 डॉट डिस्प्ले मेथड, क्योंकि इसके अंदर ID, नेम, एज है ना, सब कुछ इसी में है। ये ब्लॉक को यहाँ पे हम लोग कॉल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? वी आर कॉलिंग दिस ब्लॉक कहाँ पे? इन मेन मेथड, मेन मेथड, ओके। अगर हम लोग वर्ड के बाद जो डिस्प्ले लिख रहे हैं, यहाँ पे डिस्प्ले नहीं लिखकर तो रॉन्ग है। तो वॉइड डिस्प्ले मेथड यहाँ बनाओगे, वॉइड के बाद डिस्प्ले यहाँ पे लिखा है, तो डिस्प्ले यहाँ पे हम नेम नहीं लिखेंगे और सिर्फ S1 लिखेंगे। हाँ तो फिर एरर थ्रो होगा, यस एरर थ्रो हो जाएगा, कॉल ही नहीं हो पाएगा। अगर इसका क्वेश्चन ये होता, अगर ये हटा दिए और इफ यू आर यूजिंग दिस लाइन ओनली, नहीं ये रहेगा, बस वॉइड के बाद हम लोग डायरेक्ट सिस्टम डॉट, नहीं चलेगा। वॉइड मेथड नेम नहीं है, वॉइड इज रिटर्न टाइप, डिस्प्ले इज द मेथड नेम, डिस्प्ले इज द मेथड नेम। और डिस्प्ले मेथड का मतलब टू डिस्प्ले द वैल्यूज, टू डिस्प्ले द वैल्यूज। ये मेथड को हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, कहाँ पे कॉल कर रहे हैं? मेन फंक्शन में। और कैसे कॉल कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास और डॉट मेथड नेम, ओके। टेस्ट करने में क्या आएगा? ये वैल्यूज आएंगी, आ गया 1 1 1 2 parameters and 3 parameters. Okay, let's see this now. Is it clear, online students? Offline students, online students? Yes, ma'am. Okay, let's see now.
क्या लिखना चाहिए? मॉडिफायर्स। एक्सेस मॉडिफायर्स। नाउ सी नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एक्सेस मॉडिफायर्स इन जावा। यूनिट 2 का नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेस मॉडिफायर्स इन जावा। एक्सेस मॉडिफायर्स मींस एक्सेस राइट्स। ठीक है, ये हो गया access modifiers in Java. There are 4 types of Java access modifiers: private, public, protected and default. Private, public, protected and default, 4 types के access modifiers है. Private, public, protected and default. Okay. Now see what is private. Private modifier is only within the class. It cannot be accessed from outside the class. See, अगर तुम private कीवर्ड लगाते हो तो means क्या होगा? Only within the class. For example, यहाँ दिया है तो example let's see. See, अभी अगर suppose if you have created 2 class, कितने class create किए? 2 class. Class फर्स्ट क्लास का नाम A है, लेट अस कंसीडर, और सेकंड क्लास का नेम क्या है? सिंपल है. अभी ये क्लास में देखो, ऊपर से देखेंगे पूरा प्रोग्राम नहीं. डेटा और मैसेज को तुमने प्राइवेट कीवर्ड यूज किए, राइट? डेटा एंड मैसेज को तुमने क्या किए? प्राइवेट कीवर्ड. तो ये जो प्राइवेट कीवर्ड है, ये जो मींस ये जो इंट डेटा और मैसेज जो है कहाँ पे यूज करना? इट शुड बी विजिबल इन दिस क्लास ओनली. ए समझे? तो डेटा और मैसेज को यू कांट यूज इन अनदर क्लास. अदर क्लास में यूज नहीं कर सकते बिकॉज ये क्या है? प्राइवेट है. प्राइवेट मींस यूज ओनली विद इन दैट क्लास ओनली. यूज ओनली विद इन द क्लास ओनली इन विच इट इज डिक्लेयर्ड. समझ रहे हो? जहाँ पे उसका डिक्लेरेशन हुआ है प्राइवेट का, वही क्लास पे यूज कर सकते हैं. इन अदर क्लास यू कांट यूज दैट वेरिएबल. जैसे अभी डेटा और मैसेज है, कहाँ पे डिफाइन है? ए क्लास में. तो यहाँ पे इफ यू आर गोइंग टू यूज दिस डेटा एंड मैसेज, ये देखो मैसेज और डेटा यूज करने जाएंगे. डेटा एंड मैसेज ऊपर देखो प्रोग्राम में डेटा और मैसेज को अगर इफ यू आर गोइंग टू यूज, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा. क्यों? बिकॉज प्राइवेट है ये. यूज विद इन दैट क्लास ओनली इन विच इट इज डिक्लेयर्ड. ओके, तो ये डेफिनेशन लिखा है यहाँ पे. नाउ नोट डाउन द डेफिनेशन. प्राइवेट मॉडिफायर, the access level of a private modifier is only within the class. Access level of a private modifier is only within the class. It cannot be accessed from outside the class. उसका जो access level है private modifier का, वो within the class only we can use. It cannot be accessed from outside the class. This level of private modifier is only within the class. It cannot be accessed from outside the class. नेक्स्ट अभी देखते हैं पब्लिक. उसका अपोजिट रहेगा पब्लिक. ओके, द एक्सेस लेवल ऑफ ए पब्लिक मॉडिफायर इज एवरीवेयर. कहाँ पे है? एवरीवेयर मीन्स एवरीवेयर, कहीं पे भी आउटसाइड द क्लास यूज करो, कहीं पे भी यूज करो. पब्लिक आ गया ना, वर्ड पब्लिक है पूरा. द एक्सेस लेवल ऑफ ए पब्लिक मॉडिफायर इज एवरीवेयर. इसका मीनिंग ये है, इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम विद इन द क्लास, आउटसाइड द क्लास, विद इन दी पैकेज. हम पैकेज ये समझ में आते कोई प्रॉब्लम नहीं. पैकेज क्लियर हो जाएगा जब कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे पैकेज क्या होता है. बट अभी के लिए वर्ड याद रखो, विद इन दी पैकेज, आउटसाइड दी पैकेज, हर जगह ये तुम यूज कर सकते हो अगर पब्लिक लगा भी दिया तो. ओके, लेट्स सी एग्जांपल यहाँ पे दे दिया है. सिंटैक्स
अच्छा नोट डाउन कर लो पहले डेफिनेशन, स्लो ही जाएंगे थोड़ा। द एक्सेस लेवल ऑफ ए पब्लिक मॉडिफायर इज एवरीवेयर। एवरीवेयर मीन्स इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम विद इन द क्लास, आउटसाइड द क्लास, विद इन द पैकेज एंड आउटसाइड द पैकेज। n is equal to equal क्या भी जीरो नहीं है यहाँ पर इनिशियल कंडीशन प्रेडिक्ट वन है अदर कनेक्टेड प्रोग्राम आई विल पुट n इज द नंबर क्या देखो इससे पहले वाले में also when a member of a class is defined public specified then that member can be accessed anywhere in the same program as the other connected program. Right, perfect. Now let's see this, ये वाला देखो अगर मैं जीरो अगर पुट करूंगी तो पब्लिक, ये प्रोग्राम देखो सब लोग, सीधा स्क्रीन देखो। पैकेज पे आएंगे हम लोग। सी अभी क्या करना है हम लोग को, पब्लिक क्लास, एक सेकंड ना, ये टेबल देखते हैं रुको पहले, क्या देखेंगे, ये टेबल ड्रॉ कर लो तो अच्छा रहेगा, एकदम इजी हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ये टेबल याद हो गया, समझो पूरा डेफिनेशन याद हो जाएगा। एक्सेस मॉडिफायर कौन से प्राइवेट है, डिफॉल्ट है, प्रोटेक्टेड है और पब्लिक है। ओके, देन विद इन क्लास, विद इन पैकेज दिया है, आउटसाइड पैकेज बाय सब क्लास ओनली दिया है, आउटसाइड पैकेज लिखा है। ये वर्ड्स क्लियर होंगे, ओनली नोट डाउन दिस। प्राइवेट जो है, प्राइवेट तुम विद इन द क्लास यू कैन यूज, ओनली विद इन द क्लास यू कैन यूज, बाकी सब नो आएंगे, बाकी सब नो। प्राइवेट कीवर्ड जो है वो विद इन द क्लास ही एक्सेस कर सकते हो। इफ यू यूजिंग द प्राइवेट कीवर्ड तो विद इन द क्लास ही वो जो ऑब्जेक्ट और मेथड है वो विद इन द क्लास ही यूज कर सकते हो, विद इन द पैकेज नहीं, आउटसाइड द पैकेज नहीं। आउटसाइड द पैकेज बस सब क्लास, आउटसाइड पैकेज सब में नो आएगा, सिर्फ किस में यह जाएगा, विद इन द क्लास, बिकॉज ये बहुत ज्यादा ही प्राइवेट समझ लीजिए सिक्योर है। डिफॉल्ट का देखो, डिफॉल्ट में दो में यस है, विद इन दी क्लास और विद इन दी पैकेज में यस है। कहाँ पे, विद इन दी क्लास और विद इन दी पैकेज। और जो भी आउटसाइड कीवर्ड वाले हैं, आउटसाइड में नो आ जाएंगे, आउटसाइड में नो। प्रोटेक्टेड जो है वो विद इन दी क्लास भी है, विद इन दी पैकेज भी यूज कर सकते हो। सिर्फ प्रोटेक्टेड को तुम बाहर का जो पैकेज है उसमें यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तीनों यस है, विद इन द क्लास में भी, विद इन द पैकेज भी, आउटसाइड द पैकेज बाय सब क्लास। ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा पर याद रखो, आउटसाइड द पैकेज बाय सब क्लास होंगी। सिर्फ इसको आउटसाइड से प्रॉब्लम ऐसे याद रखो, प्रोटेक्टेड को यहाँ पे नो है, ठीक है। देन नेक्स्ट पब्लिक में तुम बता सकते हो ना क्या है, सब में ही यस है, पब्लिक में सब में यस है। अब प्राइवेट में क्या है, सिर्फ विद इन दी क्लास में, बाकी अदर थ्री क्या है, नो है। डिफॉल्ट में आउटसाइड वाले नो है ना, आउटसाइड ही वर्ड है ना तुम्हें यहाँ पे, आउटसाइड वाले नो है। एंड प्रोटेक्टेड को सिर्फ आउटसाइड पैकेज में नो है। तो टेबल याद कर लो, डेफिनेशन बना सकते हैं। टेबल को याद कर लो, अभी याद कर लो। पब्लिक वाली शादियाँ, पब्लिक वाली शादियाँ, एक्सेसिबल पब्लिक चलेगी शादी के नाम से Public is like Google Classroom. Everyone is accessible. प्राइवेट व्हाट्सएप, हाँ प्राइवेट like individual basis में you can chat. प्राइवेट का फीचर है. सीक्वेंस में लिखा हुआ है, अगर फॉर्मेट भी अगर
चलो प्राइवेट से स्टार्ट करते हैं विद प्रोग्राम ओनली, प्रोग्राम के साथ में देखते हैं कॉन्सेप्ट वन बाय वन। प्राइवेट मॉडिफायर, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर इज एक्सेसिबल ओनली विद इन दी क्लास। So in this example what we are doing, ध्यान से सुना था, we have created two classes, we have created two classes, ठीक है, A और सिंपल, दो क्लास के नेम वी आर गिविंग। एक क्लास का नेम क्या है, ए है, दूसरे का नाम क्या है, सिंपल है। A class contains private data member and private method। A class क्या है, प्राइवेट डेटा मेंबर एंड प्राइवेट मेथड, यही है ना, डेफिनेशन लिखा है इसी यहाँ पे। We are accessing these private members from outside the class। अभी हम लोग प्रोग्राम में what we are trying to do, we are trying to access these private members, ये जो प्राइवेट मेंबर्स है ना, डेटा और मैसेज फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। तो क्या आएगा, इट विल लीड टू कंपाइल टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर। तो प्रोग्राम जस्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग द यूज ऑफ प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। क्या हम लोग शो करें, यूज ऑफ प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। अब लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोग्राम। क्लास में ओके, यहाँ पे अभी मैं क्या कर रही हूँ, प्राइवेट डिक्लेयर करने मुझे। तो डेटा एक वेरिएबल में ले रही हूँ, वेरिएबल, और एक मैं ले रही हूँ मेथड। एक क्या ले रही हूँ, कहीं पे भी लगा सकते प्राइवेट, वेरिएबल में भी और मेथड में भी। ओके, तो डेटा डायरेक्ट लिखते हैं कि डेटा हम लोग हमेशा वेरिएबल को डायरेक्टली लिखते हैं क्या, डेटा टाइप के साथ में ही लिखते हैं। तो इंटीजर इज डेटा टाइप, अगर तुमको इंटीजर वैल्यू स्टोर करना तो इंटीजर डेटा टाइप, ओके, इंट। और ये कैसा है डेटा, अभी मैं इसको प्राइवेट बनाना चाह रही हूँ, क्या प्राइवेट, प्राइवेट कीवर्ड लगा दो, पहले कीवर्ड लगाओ, डेटा टाइप लिखो और वेरिएबल लिखो, इक्वल वैल्यू असाइन कर दो। नाउ ये जो वेरिएबल है डेटा कैसा है, वो प्राइवेट टाइप का है, प्राइवेट। अभी मैं क्या करूँ, नेक्स्ट एक मेथड बना रही हूँ, मेथड नेम लेट्स टेक MSG। क्या है मेथड का नेम, MSG, मैसेज। ओके, वॉइड लगा दी मैंने मेथड के आगे, क्या लगा दी, वॉइड। ये कैसा मेथड है, बनाना है मुझे प्राइवेट टाइप का। कैसे बनाना है, प्राइवेट टाइप का। अब मेथड का ब्लॉक भी बना रही हूँ मैं। मेथड में क्या प्रिंट करवा रही हूँ मैं, हेलो जावा। प्रिंट करवाने के लिए क्या, व्हाट वी आर राइटिंग, सिस्टम डॉट आउट डॉट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, इन ब्रैकेट में डबल कोट्स में वी आर राइटिंग हेलो जावा, and then semicolon, semicolon देते हैं ना टू टर्मिनेट दी स्टेटमेंट, और ये ब्लॉक क्लोज हो गया। यहाँ पे स्टार्ट हुआ ना, राइट, और यहाँ पे क्लोज हो गया। नाउ अभी मुझे ये शो करना है, प्राइवेट का यूज शो करना है, ठीक है। तो यूज कैसे शो होगा, एक और क्लास बनाते हैं और देखते हैं कि प्राइवेट यूज कर पाते हैं क्या। ऐसे यूज शो करेंगे ना, लेट्स क्रिएट वन मोर क्लास एंड वी हैव टू ऑब्जर्व दैट whether we can use this private you can say private members in other class or not. Let's see ना होता है कि नहीं। Let's create one more class। क्लास का नेम क्या है, सिंपल। क्लास का नेम क्या है, सिंपल है। और ये क्लास कैसा है, पब्लिक टाइप का। मैंने पब्लिक लगा दी, नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, इसका यहाँ पे कोई यूज नहीं है। ओके, पब्लिक लगा दी नहीं, सिंपल क्लास को तुम कहीं पे भी यूज कर सकते हो। बट नाउ लेट्स नॉट फोकस ऑन दिस क्लास सिंपल मेन मेथड। ओके, अभी मैं ये क्लास सिंपल में क्या कर रही हूँ, आई एम क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। क्या कर रही हूँ मैं, ये वाले क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ। ए, क्लास का नाम ए ही है ना। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, क्लास नेम वेरिएबल इक्वल न्यू क्लास नेम। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आफ्टर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास आई एम कॉलिंग दिस डेटा एंड MSG। यही हो रहा है ना, ऑब्जेक्ट बन गया क्लास का, obj डॉट डेटा और obj डॉट मैसेज। ये प्रोग्राम सिंपल में क्या कर रही हूँ मैं, डेटा और MSG को कॉल कर रही हूँ, डेटा और MSG को कॉल कर रहे। तो डायरेक्टली कॉल तो नहीं करते, इतना समझे, डायरेक्टली कॉल करते हैं कुछ भी चीज को डायरेक्टली कॉल करते हैं हम लोग। अभी लेट्स कंसीडर, प्राइवेट को भूल जाओ, डेटा और MSG में कॉल करना चाहती हूँ। क्या करना है मुझे, डेटा और MSG कॉल करना है। तो पहले ऑब्जेक्ट ही बनाएंगे ना क्लास का, राइट। तो क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना, बन गया। उसके बाद में क्या कर रही है, जो हमारा ये है ऑब्जेक्ट डॉट डेटा, ऑब्जेक्ट डॉट डेटा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट मैसेज। तो वो क्या आएगा, इट विल शो कंपाइल टाइम एरर। लेट्स रन दिस, कंपाइल टाइम एरर कैसे आएगा, व्हाई कंपाइल टाइम एरर, क्योंकि मैम वो प्राइवेट
बिकॉज ये जो है यू कांट क्रिएट दी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास जहाँ पे प्राइवेट डिक्लेयर है, ओके। और उसके जो मेंबर्स है वो भी तुम यूज नहीं कर सकते। के मेंबर्स को तो अल्टीमेटली आर यूजिंग द मेंबर्स ऑफ द क्लास ए ओनली, क्लास ए के हम लोग एक्सेस कर रहे हैं ना, ओके। तो कंपाइल द एरर शो होगा। रन करें इसको। अच्छा क्या नेम से सेव करेंगे ये बताओ। ए से सेव किया बट नहीं हो रहा है। ए से नहीं करेंगे, ए से प्राइवेट है तो नहीं ए से नहीं। लेट्स कंसीडर ये दो क्लास है, दो क्लास। तो सिंपल क्लास में मेरा मेन मेथड है। कहाँ पे मेन मेथड है जावा का? ये जो स्टेटमेंट है पब्लिक सिंपल में, सिंपल क्लास में आई एम ट्राइंग टू एक्सेस द मेंबर्स ऑफ द प्राइवेट। सिंपल क्लास हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या एक्सेस करना चाह रहे हैं? प्राइवेट वाले को एक्सेस करें। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। सिंपल तो दूसरी क्लास है कोई, उससे प्राइवेट वाले को एक्सेस कर सकते हैं, दूसरी क्लास में नहीं कर सकते, तो खुद की क्लास नहीं है ना उसकी। ओके, क्या करेंगे? इससे सेव करेंगे जहाँ पे मेन मेथड है। हमेशा याद रखो मेन मेथड से ही सेव करना है। फाइल सेव, ठीक है। ई आई एम देखिए, क्लास नेम सिंपल डॉट जावा एक्सटेंशन, सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स सेव। ये ऑलरेडी सिंपल नेम का फाइल है, that's why it is asking do you want to replace it because already it is present simple file. अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? मैम 2 error लेस देन 1 मिनट है। सी डोंट रिजॉइन ना, अगर नहीं हो पाया तो रन वी विल एग्जीक्यूट इन द नेक्स्ट लेक्चर। 2 errors हाँ आएगा ना, 2 एरर राइट है ना। कंपाइल टाइम एरर आएगा। एरर क्या थ्रो करेगा? ये प्रिंट नहीं होगा, कंपाइल टाइम एरर, बिकॉज तुमने क्या किए, यू आर एक्सेसिंग द प्राइवेट मेंबर्स इन द अदर क्लास, accessing the private members in the other class, okay, outside the class. मैसेज नहीं प्रिंट होगा और कुछ भी नहीं, कंपाइल टाइम एरर मीन देयर इज अ प्रॉब्लम इन द एक्सेसिंग पार्ट। प्रॉब्लम इसी में है ना, तो कंपाइल टाइम एरर आएगा। क्या लिख के आएगा? कंपाइल टाइम एरर। अगर सिर्फ हमें क्लास ए प्रिंट करना होगा। सी कंपाइल टाइम एरर भी नहीं लिखा है, क्या लिखा है? डेटा